Hello, good morning to all of you. I'm Dr. Suchi Tripathi. Today we will discuss about inflation. Here in this lecture we will discuss about inflation's meaning, types, causes, effect and measures to control inflation. So first of all, I would like to see some pictures. आप ये सब कुछ पिक्चर्स देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज इन्फ्लेशन. इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट before inflation $4.99, by $4.99 we can purchase so big burger. हम इतना परचेज कर सकते थे, बट आफ्टर इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं इन सेम अमाउंट ऑफ मनी इससे हम कम परचेज कर सकते हैं. एक्चुअली दिस इज इन्फ्लेशन. So by this picture you can understand the condition of inflation. Another picture of economies, situation of economies in inflation. You can see the economy, inflation is little bit, इतना थोड़ा सा inflation है, but as inflation increases economy's conditions goes reverse, just badly opposite. Here you can see that as inflation again increases, the economy's stomach is just flat. So this is the situation of economies. Our Indian economy, any other country's economy also. This is the situation of inflation and economies. Now we will discuss meaning, okay, in detail. So meaning, inflation is defined as a sustained increase in the price, in the general level of prices for goods and services. It is measured as an annual percentage increase. In simple terms also we can say that increasing prices of goods and services is called as inflation, and always we measure inflation in percentage, annual percentage. Okay. So जो commodities and services की जो prices बढ़ती हैं every year, annual, एवरीवेयर जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, सस्टेन लगातार कंटिन्यूअस बढ़ रही हैं, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. एज इन्फ्लेशन राइजेस, एवरी रूपी यू ओन बायज अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ अ गुड और सर्विस. जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो भी रुपया है उससे हम कम परचेज कर पाते हैं इन्फ्लेशन के पहले के कंपेयर में. तो जो भी सर्विस है या गुड है उसको हम कम परचेज कर पाते हैं इन सेम अमाउंट ऑफ मनी. The value of a rupee does not stay constant when there is inflation. और जब भी इन्फ्लेशन होता है तो जो रुपए की वैल्यू है वो कभी भी constant, that means स्थिर नहीं रहती. The value of rupee is observed in terms of purchasing power. और वैल्यू रुपी की हम कैसे देखते हैं? परचेजिंग पावर के रिस्पेक्ट में, कि परचेजिंग पावर अगर कम हो रही है दैट मीन्स वैल्यू भी रुपी की कम हो रही है. परचेजिंग पावर बढ़ रही है मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी से हम ज़्यादा परचेज कर पाते हैं तो वैल्यू बढ़ रही है. सेम अमाउंट ऑफ मनी से हम कम परचेज कर पा रहे हैं तो वैल्यू घट रही है. So the value of rupee is observed in terms of purchasing power, which are the real tangible goods that money can buy. When inflation goes up, there is a decline in purchasing power of money. So in simple terms, जैसे ही prices बढ़ती हैं, purchasing power उसकी कम हो जाती है. That means currency की value भी कम हो जाती है. For example, if inflation rate 2% annually, then theoretically rupees 1 pack of gum will cost 1.02 in a year. Simple. Okay, theoretical, according to theoretical. After inflation, your rupee cannot buy the same amount of goods it could beforehand. पहले हम जितना खरीद पाते थे इन्फ्लेशन के बाद हम उतना ही खरीद नहीं पाते. Now types of inflation. Okay, so here many types of inflation we can see. On the basis of nature, there are two types of inflation: free and free, that means open, and controlled inflation. Free means when prices are allowed to increase according to demand and supply. It is called free or open inflation. In economy, when market economy, prices are allowed
to increase according to demand and supply of the commodity, then it is called free or open inflation. And when prices are not allowed to go up by the government measures, with the help of some government measures like controls, rationing and compulsory saving, many another things, जब पूरी तरह से वो ओपन मार्केट पर नहीं जाती, उनको कंट्रोल किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एरिया और स्कोप, according to partial, when supply increases, when money supply increases, supply of money increases according to at once supply of the goods not increases, that this is called as partial inflation. But when money supply increases but according to that production does not increases, it is also called universal or complete inflation. But after full employment, after perfect employment, production will not increase according to supply of money. So this place, this time, this is called as universal inflation. जब पर फुल एम्प्लॉयमेंट होने के कारण या सभी रिसोर्सेज को जो यूटिलाइज पूरा करने के कारण अगर अगेन सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है और कमोडिटीज के सप्लाई हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इन्फ्लेशन. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम, जैसे वॉर इंस्पायर्ड है, पोस्ट वॉर है या पीस टाइम है, इन सब के टाइम में बहुत सारा पैसा लगता है. जैसे वॉर इंस्पायर्ड है तो बहुत सारा पैसा लगता है, वो टैक्सेशन से नहीं आ सकता, डेप्ट से नहीं आ सकता, तो इस समय हम डेफिसिट बजटिंग का यूज करते हैं. वॉर इंस्पायर्ड एंड पोस्ट वॉर एंड पीस टाइम, तो जो डेफिसिट बजटिंग का हम करते हैं जिसमें पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, इनकम कम है, या हम न्यू इश्यू ऑफ करेंसी, ये सब चीज़ें देखते हैं, डेफिसिट बजटिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीड और रेट, ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और रेट. क्रीपिंग, क्रीपिंग कब होती है? क्रीपिंग मीन्स स्लो इन्फ्लेशन. जब स्पीड या स्पीड या रेट एनुअली 1 or 2% हो इन्फ्लेशन की, दैट मीन्स व्हेन प्राइसेस गो अप एट द रेट ऑफ 1 or 2% एनुअली, देन दिस इज कॉल्ड क्रीपिंग. सेकेंड, when prices, that means rate of the inflation is 2 to 4%, then it is called walking inflation. It is good for any economy, it is desirable for developing economy. Third one is running inflation, that means दौड़ती हुई कीमतें. When inflation remains around 10% annually, अगर वो 10% के लगभग हो annually, then it is called running inflation. It creates more challenging to any economy. Another is galloping or hyperinflation. When the rate of inflation is as high as 100% annually, it is called galloping inflation. This situation is very bad for any economy. Okay, so many countries we can see this situation after Second World War. Okay. So from the point of view of expectation also, in expectation, when citizen or people expected that prices of the goods are rise something, or एग्जाम्पल if अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% तक इन कीमतें बढ़ने वाली हैं कमोडिटीज की, देन इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड. और जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मान लो उन्होंने 5% का एक्सपेक्ट किया था और वो 10-20 बढ़ गया, देन इट इज कॉल्ड unexpected. In other words, we can also say if prices of goods and services rise according to expectation of the people, then it is called expected inflation. And when prices rise beyond the expectation of people and economy, then it is called unexpected inflation. Now from the point of view of reason के बेस पर demand pull inflation and cost push inflation. So what is demand push inflation? When supply of money exceeds the supply of goods and services. जब भी सप्लाई ऑफ मनी कमोडिटीज की सप्लाई से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड
पुल इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन कमोडिटीज नहीं बढ़ रही है। सो पैसे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वो डिमांड ज्यादा करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इनपुट्स लगे होते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती है, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ड्यू टू इंक्रीज in the prices of input, cost increases, and due to cost of production increase, then the price of commodities also increase. This is called cost push inflation. Now what are the causes? Okay, causes are reason also, as we have seen in last slide. Reason is also called causes. So we can see that two causes: demand pull inflation and cost push inflation. Demand and pull inflation, that means supply of money increases, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ सकती है? इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे, सप्लाई बढ़ गई है किसी भी की वजह से तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। हायर वेजेस हो गए हैं, लोगों को ज्यादा सैलरी मिल रही है तो भी उनके पास पैसे बढ़ रहे हैं, वो कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा करेंगे। सो आप डायग्राम भी यहाँ पर देख सकते हैं। डायग्राम में हमने वाई एक्स पर प्राइस लिया है, एक्स एक्स पर हमने जीडीपी लिया है, रियल जीडीपी। सो यू कैन सी दैट डिमांड before inflation demand is AD1, so price is P1. After इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई है कितनी? AD2, तो जैसे ही डिमांड बढ़ी है प्राइसेस सेम है LRAS, दैट मीन्स लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन की सप्लाई है। तो आप देखिए सप्लाई का कर्व है ये, तो अब यहाँ पर देखिए ये कीमतें, डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं P2। नाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हायर वेज के कारण उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, या डिवेल्यूएशन होता है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उनको ज़्यादा देना पड़ता है, या अगर वैट भी बढ़ा है तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है तो भी कॉस्ट बढ़ जाती है। इन सब की वजह से जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से कमोडिटी की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, ये है एडी, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड, SRAS दैट मीन्स शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो आप देख सकते हैं ये सप्लाई कर्व है, इधर वाई एक्स पर हमने प्राइस ली है, पहले प्राइस थी P1, आप देख सकते हैं ये सप्लाई कर्व था SRAS1, और जैसे ही सप्लाई कम हुई है या कॉस्ट बढ़ने के कारण सप्लाई कम हुई है, यानी लेफ्ट हैंड शिफ्ट हुई है, आप देख सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ गई हैं। कितनी हो गई हैं? P2। What are the effects of inflation? Now we will discuss effects of inflation. Effects on distribution of income and wealth. First, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन पर। सो पहले हम देखते हैं क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स पर। ओके, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्रेडिटर्स लूज एंड डेब्टर्स गेन। कैसे? क्यों क्रेडिटर्स, क्यों उनको घाटा होता है, डेब्टर्स को क्यों फायदा होता है? देखिए क्यों, क्योंकि अगर उनको पैसे मिल रहे हैं अभी इन्फ्लेशन के टाइम पर, अगर क्रेडिटर्स को पैसे वापस मिल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी, वो उतनी ही मनी से अब उतनी चीज परचेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको घाटा होगा। बट देने वालों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जो अब करेंसी दे रहे हैं वो कम परचेजिंग वाली या लेस वैल्यू वाली दे रहे हैं। Okay, that means debtors gain as a group again as they repay their debts. If they repay their debts in currency that has lost its value, उसकी वैल्यू घट गई है, the same currency unit will now buy less goods and services, and by this reason they will gain. प्रोड्यूसर एंड वर्कर, प्रोड्यूसर एंड वर्कर पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए प्रोड्यूसर्स विल गेन बिकॉज दे गेट हायर प्राइसेस, एंड अगर वो ज़्यादा कीमतें मिल रही हैं तो वो और इनकरेज होते हैं कि और वो प्रॉफिट करें और प्रोड्यूस करें। ओके, थस मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अ प्रोड्यूसर कैन अर्न मोर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, बट वर्कर, जो वर्कर वहां पर काम करते हैं, वर्कर लूज एज दे फाइंड फॉल इन देयर रियल वेज, मनी वेज, जो कि जो इतने पैसे मिल रहे थे उसकी वैल्यू घट रही गई है, उसकी परचेजिंग पावर घट रही है, इस वजह से उनकी रियल वेज घटती है तो उनको घाटा हो जाता है, फायदा नहीं होता। ओके, एज देयर मनी वेजेस डू नॉट यूजुअली राइज प्रोपोर्शनली विद द इंक्रीज इन
प्राइसेस, मनी वेज प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती है जितनी प्राइसेस बढ़ती है, इस वजह से उनको लॉस होता है। फिक्स्ड इनकम अर्नर, जिनको फिक्स्ड इनकम मिलती है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है? फिक्स्ड इनकम अर्नर्स लाइक सैलरी पीपल, रेंट अर्नर्स, लैंडलॉर्ड्स, पेंशनर्स, इन सब के ऊपर क्या होता है, सफर ग्रेटली बिकॉज इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ देयर अर्निंग। अर्निंग तो उनके फिक्स्ड है लेकिन उसकी वैल्यू घट गई है, दैट इज वाई दे सफर। इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? द इन्वेस्टर इन इक्विटी शेयर्स गेन एज दे गेट डिविडेंड्स एट हायर रेट्स बिकॉज ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड दे फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग अप्रिशिएटेड, बट द बॉन्ड होल्डर्स लूज एज दे गेट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट द रियल वैल्यू ऑफ विच हैज ऑलरेडी फॉलन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट ले जाते हैं, बट जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि अगर उनके बॉन्ड की कीमतें मार्केट में जो रियल वैल्यू घट गई है तो उनको लॉस होता है। ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स, बिजनेस पीपल एंड ब्लैक मार्केटर्स, इन सब को फायदा होता है। कैसे? दे गेन बिकॉज दे मेक मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम द परसिस्टेंस rise in prices. Okay, so all these people make benefit in inflation. Farmer also gain because the rise in prices of agricultural products is usually higher than increase in the prices of other goods. Farmers भी gain करते हैं, but actually in India this is a paradox कि small farmer and medium farmers को इतना फायदा नहीं मिलता, large scale farmers को ही फायदा मिलता है। Effects on production. The rising prices stimulate the production of all goods, both of consumption and capital. चाहे कंजम्पशन गुड्स हो और चाहे कैपिटल गुड्स हो, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ता है। एज प्रोड्यूसर गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट, दे ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बाय यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्स एज देयर डिस्पोजल। Okay? जितना ही उनको प्रॉफिट होगा वो और प्रोडक्शन करेंगे, अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो और प्रोडक्शन करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। इफेक्ट्स ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इन्फ्लेशन टेंड्स टू इंक्रीज द एग्रीगेट मनी इनकम. एग्रीगेट मनी इनकम बढ़ती है, मनी इनकम बढ़ती है, नॉट रियल इनकम. ओके, दैट मीन्स नेशनल इनकम, सॉरी, ओके, of the community as a whole on account of larger spending and greater production. Production भी हो रहा है, spending भी ज़्यादा हो रही है. Similarly, the volume of employment increases under the impact of increased production. एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ता है. बट द रियल इनकम ऑफ पीपल फेल्स टू इंक्रीज proportionally due to fall in the purchasing power of money. लेकिन जो लोगों की रियल इनकम है वो घट रही है, क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू घट रही है, वो मनी वेज बढ़ रहा है, मनी इनकम बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू घट रही है क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूसेस. Okay, so this is the effect on income and employment. Employment increases, money income increases, but real income decreases. Effect on business and trade. क्या इफेक्ट होगा बिजनेस और ट्रेड पर? द एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड टेंड्स टू इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. जो इंटरनल ट्रेड होता है वो बढ़ता है ड्यू टू हायर इनकम्स, ग्रेटर प्रोडक्शन एंड लार्जर स्पेंडिंग. किसकी वजह से बढ़ता है? हायर इनकम, ग्रेटर प्रोडक्शन एंड लार्जर स्पेंडिंग की वजह से बिजनेस एंड ट्रेड बढ़ता है. बट द एक्सपोर्ट ट्रेड इज लाइकली टू सफर. लेकिन जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो उसमें हमें उतना बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स के प्राइसेस बढ़ रही हैं. हाउएवर बिजनेस फर्म्स expand their business to make larger profit. लेकिन जो बिजनेस फर्म्स होते हैं वो अपने बिजनेस को और बढ़ाते हैं to make more profit. During most inflation, since costs do not rise as fast prices प्रॉफिट, सो जितना प्राइसेस बढ़ती हैं उतना कॉस्ट नहीं बढ़ पाती है इस वजह से. बट वेजेस डू नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेट विथ प्राइसेस. वेजेस प्राइसेस के प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती हैं, कॉजिंग हार्डशिप. तो यहाँ पर वर्कर के लिए बहुत हार्डशिप्स हो जाता है.
और जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए प्रॉफिट होता है, तो इट मेक्स मोर एंड मोर इनइक्वालिटी। एज द ओल्ड सेइंग गोज, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस मूव इन एस्केलेटर एंड वेजेस इन स्टेयर। जैसे कि पुराने लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन प्राइसेस हैं वो एक्सकलेटर की तरफ जा रही हैं और जो वेज हैं वो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स की तरह जा रही हैं। मतलब रियल वेज आपकी स्टेयर्स जैसा बढ़ रहा है, मनी वेज एक्सकलेटर की तरह। इफेक्ट्स ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। During inflation, the government revenue increases as it get more revenue from income tax। तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ता है, मनी रेवेन्यू कैसे, इनकम टैक्स बढ़ता है, सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज है, मनी वैल्यू इन सबकी बढ़ती है। Similarly, public expenditure increases as the government is required to spend more and more for administrative and other purposes। गवर्नमेंट को भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। बट द राइजिंग प्राइसेस रिड्यूस, लेकिन ये जो बढ़ती कीमतें हैं ये रियल बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट, ये इसको घटाते हैं। क्यों? बिकॉज अ फिक्स सम हैज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट पर पीरियड। क्यों? आप देखिए, इन रेवेन्यू भी गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बट पब्लिक डेप्ट का जो रियल बर्डन होता है वो घटता है। क्यों? क्योंकि वो अब जो मनी देनी है फिक्स सम, उसकी वैल्यू, दैट मीन्स परचेजिंग पावर, purchasing capacity of the money is decreasing, so real burden of public debt घटता है। Effects on growth. A mild inflation promotes economic growth, but a runaway inflation obstructs economic growth as it raises cost of development projects। माइल्ड इन्फ्लेशन है तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, वो इनकरेज करता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, दैट मीन्स फॉर मोर प्रोडक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स फॉर मोर जीडीपी। लेकिन जो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Okay. Now we will see measures to control inflation. Basically, we can control inflation by two type of policies: fiscal measures and monetary measures. That means fiscal policy and monetary policy. So fiscal measures, that means we are using fiscal policy. In this policy, we can include taxation, government expenditure, and public borrowing to control inflation. In monetary measures, the most important and commonly used method to control inflation is monetary policy of the central bank. Most central banks use high interest rate as a traditional way to fight or prevent inflation. Basically, like in India, monetary policy is more used to control inflation. In traditional way, क्या करते हैं? Central bank interest rate को बढ़ा देता है to control inflation. Now, what are the fiscal measures जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्सेस से बढ़ाते हैं तो लोगों के पास, अगर टैक्सेस से बढ़ा देते हैं तो उनकी मनी, उनकी जो कैश मनी है वो घट जाती है, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी घट जाती है। इंक्रीज, अगर वो सेविंग बढ़ाते हैं तो मार्केट में पैसे कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी अगर मनी सप्लाई कम हो रही है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है। सरप्लस बजट बनाते हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस देन इनकम, तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि जैसे ही वो लोगों के हाथ में पैसे कम होते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। सो इन दिस वे वी कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय फिस्कल measures. Now what are the monetary measures? कौन कौन से हैं जिससे कंट्रोल होता है? Monetary measures used to control inflation include bank rate policy, CRR also called cash reserve ratio, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी जिससे रिलेटेड इंटरेस्ट रेट हैं। तो सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है कि जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो बैंक रेट बढ़ाती है, जब भी इन्फ्लेशन को नीचे लाना होता है तो बैंक रेट घटाती है। इस तरह से कंट्रोल करती है। CRR भी, अगर इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, कम करना है तो CRR को बढ़ा देंगे। और हमें अगर इन्फ्लेशन
कंट्रोल में है तो CRR को हम घटा देते हैं। इस तरह से CRR दैट मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक अपने टोटल क्रेडिट का कैश फॉर्म में RBI के पास रखते हैं। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? इन दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। So by this activity government also controls inflation। कैसे? जैसे कि अगर इन्फ्लेशन है, दो एक्टिविटी है, सेल शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है, सेल और परचेज। तो अगर सप्लाई घटानी है तो क्या करेगी? सेल करेगी, मतलब लोगों के बैंक से पैसे निकाल रही है। और अगर सप्लाई मनी की बढ़ानी है तो परचेज करेगी। क्या? सेल एंड परचेज। परचेज मीन्स खरीदना, मतलब आपसे सिक्योरिटी ले रही है और आपके हाथ में पैसे दे रही है। सो इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, नाउ कंक्लूजन। इन रियलिटी low inflation means slow economic growth in reality, okay, because as inflation increases, employment also increases, production also increases. So low inflation rate, it is also called a slow inflation rate is इसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। बट इन्फ्लेशन स्पेशली रनवे इन्फ्लेशन, मतलब जो तेजी से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, इज एन अनस्टेबल सिचुएशन। It makes the business world uneasy and uncertain. Society get disturbed as there grows discontentment among the salaried people and they demand an increase in their wages and salaries. तो सब कुछ uncertain हो जाता है, inequality बढ़ जाती है, disparity बढ़ जाती है, poorer becomes more poorer, richer becomes more richer. So this is the situation. So thank you all of you for this. Thank you all of you. If you have any doubts and queries, you can write, you can ask lecture also, you can write in comment box also. Thank you everyone.